Hello students, welcome to my channel again. I'm Chinmay Jain and today we are going to start a new topic, that is admission of partner. Today we are going to discuss some basics of admission of partner, and of course it will start with reconstitution of partnership, the meaning of reconstitution. What is the meaning of reconstitution? Reconstitution includes three things. First is admission of a partner, second is retirement of a partner, and third one is death of a partner. All these three things affect the organization in such a way that the agreement of partnership is changed, but there is no change in business of organization. Now, moving to the next thing, that is admission of a partner, which we are going to discuss in this chapter. Admission of partner means a person joins as a partner, means a new person is joining as a partner. When he will join as a partner, he'll bring capital as well as goodwill to take part in the profit of working of the business. Now, you will say कि capital is okay, but why he is bringing goodwill? So, see, पुराने partner जो है वो बहुत समय से organization में काम कर रहे हैं and they have built a reputation of the organization. अब कोई नया आता है तो organization already जो profit earn कर रही है उसके पीछे काफी मेहनत हुई है. तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो इस मेहनत को ऐसे ही एंजॉय करने देंगे क्या न्यू पार्टनर को? नहीं. वो उसके लिए बोलते हैं यू ब्रिंग सम पार्ट ऑफ गुडविल. तुम कुछ गुडविल लाओ और वो गुडविल कौन किसको मिलेगी? वो जो गुडविल लेकर के आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी, जिसको बिजनेस के प्रॉफिट्स एंजॉय करने के लिए गुडविल लेकर के आना होगा, राइट? तो गुडविल में वो क्या लेकर के आता है? न्यू पार्टनर गुडविल में कैश लेकर के आता है. सो कैपिटल इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ कैश एंड गुडविल इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ कैश. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, there is a change in agreement, means the agreement of partnership is being changed, but there's no change in the business of the organization. Now, why a partner is admitted in an organization? What is the need to get a new partner in the business? It's a very simple answer. First thing is we have the old partners need more capital, or they need managerial help, like they are running a chain of businesses and they want to open a new business. Now, who will handle the new business? The new partner, if he is admitted in the organization, then he can manage the business, or the both can be the reason for admission of a partner. Now, with both these things, what will happen? Expansion of business will happen and they can grow the business to grow their profits. Okay. Now, what are the steps of reconstitution and admission of partner? First step is calculation of new ratio. Okay, if new partner is coming in the business, he will also share the profits now, right? So पहले मान लीजिए जो old partners थे वो equally divide कर रहे थे किसी चीज को, तो अब वो 3 parts में divide होने वाली है. तो we will have to calculate the new ratio. Second thing is to calculate the sacrifice ratio. If a new partner is coming in, तो जो पुराने partner है वो अपने अपने प्रॉफिट शेयर का कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करेंगे, तभी न्यू पार्टनर को उसका प्रॉफिट मिल पाएगा, राइट? वी विल सी दिस डायग्रामेटिकली ऑल्सो. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. स्टिल आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आई कैन मेक वन मोर वीडियो ऑन गुडविल ऑल्सो. Treatment of accumulated profits or losses. What is accumulated? Accumulated means collected. पुराना इकट्ठा हुआ हुआ जो प्रॉफिट होता है, that is called as accumulated profit. Revaluation of assets and liabilities. Assets and liabilities जो बुक में लिखी होती है तो उसपे हम डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर चार्ज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से मैच होती हो. तो कोई भी न्यू पार्टनर एंटर करेगा उससे पहले असेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू जरूर चेक की जाती है. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल.
Okay, so we will discuss all these points in detail in this video, starting with the calculation of new ratio. See, this is old ratio. 3:2 is the old ratio which is being divided between A and B. Now, if a new partners come in, he will get a न्यू रेशियो. तो अब नया पार्टनर जब यहाँ पर आया तो देखिए ये अब 2:3 नहीं रहा, 3:2 नहीं रहा. दिस इज चेंज नाउ. तो अब ये जो चेंज रेशियो है तो नया रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? लेट्स सी दैट. फर्स्ट वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ होल फर्म. ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है. इसको आप 100% भी कह सकते हो या फिर 1 भी कह सकते हो. ओके, नाउ अ न्यू पार्टनर इज ज्वाइनिंग इन. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 मीन्स क्या? हमने इस पूरे प्रॉफिट को अगर 1 माना तो अगर न्यू पार्टनर एंटर करता है फॉर 1/5 शेयर तो हमें कैलकुलेट करना है कि ओल्ड पार्टनर्स के लिए अब कितना प्रॉफिट बाकी रह गया है. हाउ इट विल कैलकुलेट इट? बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर. तो शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर कितना है? 1/5. सो 1 माइनस 1/5 हम लोग करेंगे. तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन. Anika and Radhika are partners sharing profits in the ratio of 5:1. Okay. So यहाँ पर old ratio जो है that is 5:1. They decide to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the new ratio of the firm. तो अब देखिए यहाँ पर new partner 1/5 share के लिए आ रहा है. जो old ratio है वो 5:1 है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ 1. तो बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4/5. ओके, सो ये जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. बैलेंस ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया. 1 माइनस शेयर ऑफ इनकमिंग partner. Now next we have to do second step is to calculate the new ratio. So balance of ones means हम पिछले स्लाइड में जो देख करके आए हैं that was balance of 1. 4/5 हमारे पास बचा था balance of 1 में, multiply by old ratio of old partner, right? तो यहाँ पर देखिए हमने जब इसको 1/5 को 1 में से माइनस किया तो ये जो एरिया हमारे पास बचा है दिस इज 4/5. अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो 4/5 है ये रिमेनिंग पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ अनिका. अनिका का न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं. बैलेंस ऑफ 1 कितना था? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6. तो ये 4/5 पूरा है. इसमें हम जो है 5/6 पार्ट फाइंड आउट करेंगे और वो हम किसको देंगे? अनिका को देंगे. तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको तो 5 से 5 कट हो जाएगा हमारा. 4/6 बचा और सिंप्लीफाई किया तो ये 2/3 हो गया, राइट? अभी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्टनर. तो नेक्स्ट पार्टनर हमारा कौन है? Radhika, right? Radhika, so balance of 1 is 4/5 multiply by 1/6. 1/6 हमने यहाँ से find out किया है. 5 plus 1 is equal to 6. So this is 5/6 and this is 1/6. So 1/6 हमने जब इसे multiply किया, so we have 2/15, right? Moving to the third partner, that is new partner Sanika. सानिका का शेयर है 1/5. तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो बिगेस्ट नंबर आता है हमें बाकी सबको भी उसी में कन्वर्ट करना होता है. तो सानिका का न्यू रेशियो है 1/5. तो हम इसमें अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 3/15. ओके, तो अब देखो यहाँ पर अनायिका का शेयर भी तो 2/3 है. इसको अब हमें डिवाइड में अपॉन में यहाँ पर 15 लेकर के आना है, राइट? सो 3 5 15 होता है.
तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल हैव 10/15 एज अवर रेशियो फॉर अनाइका. Okay, so now I can say our new ratio is 10/15 is to 2/15 is to 3/15, or 10 is to 2 is to 3. This way we calculated new ratio. इसके अलावा भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का कुछ तरीका होता है. आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं वो तरीका भी आप लोगों के लिए वीडियो में बना करके दे सकती हूँ. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टेप्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. सो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा और न्यू रेशियो भी गिवन होगा. वी विल हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो. चलिए, तो हम जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सेम क्वेश्चन वी आर हैविंग, अनाइका एंड राधिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:1. They decide to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio of the firm when new ratio is 10:2:3. Okay, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पर हमारे पास है ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो हमारे पास है, देखिए 5:3 इज द 5:1 इज द ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो की हम बात करें तो 10:2:3 इज द न्यू रेशियो, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था. राइट, जल्दी से देख लेते हैं. सबसे पहले अनाइका के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो सैक्रिफाइस ऑफ अनाइका इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो है अनाइका का 5/6. मैंने आपको बताया था 5+6 इज इक्वल टू 5+1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो 5/6 यहाँ पर आया, माइनस न्यू रेशियो है हमारा 10+2+3 15. सो 10/15 विल बी द न्यू रेशियो ऑफ अनाइका. तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा और हमारा आंसर आएगा 5/3. ओके, नाउ नेक्स्ट है सैक्रिफाइस ऑफ राधिका. राधिका सेक्रीफाइस, तो देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो ऑफ राधिका है 1/6 माइनस न्यू रेशियो इज 2/15. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो वी गेट 5 minus 4/30 is equal to 1/30. तो अभी सैक्रिफाइस रेशियो जो है, सैक्रिफाइस विल बी डन बाय ओल्ड पार्टनर ओनली. तो न्यू पार्टनर का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है. सो वी आर डन विद द सैक्रिफाइस रेशियो एंड इट इज 5:1. ओके, क्वेश्चन जब इस तरह से फॉर्म होता है कि जहां पर हमको ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर अलग से दिया हुआ है, तो इस केस में हमेशा हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है. इस चीज को आप और अच्छे से समझेंगे जब मैं आप लोगों को रेशियोज का एक अलग से वीडियो बना के डालूंगी जिसमें अलग अलग मेथड्स होंगे. फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो मेथड्स मैंने इस वीडियो में डाले हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ वही कवर किया है जो होल एंड सोल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा. Okay, so we are done with two steps. First is calculation of new ratio. Second one is calculation of sacrifice ratio. Moving to the treatment of goodwill. ये दोनों पॉइंट जो हैं इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. जब आप लोगों को फुल क्वेश्चन आता है 10 मार्क का या 12 मार्क का, दे डू नॉट मेक दीज टू पॉइंट्स डिफिकल्ट. ओके, सो मूविंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो जनरली हर क्वेश्चन में डिफरेंट रहता है. लेट्स सी, देयर आर डिफरेंट केसेस. गुडविल जो है वो कैश में जब कोई पार्टनर लेकर के आता है, जो कि जनरली होता है, तो उसके लिए क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं. When partner brings his share of goodwill in cash, so journal entry will be cash or bank account debit because cash is coming in the business. ठीक है, अब कैश तो बिजनेस में आ रहा है, लेकिन कैश के बदले में हमारा बिजनेस क्या दे रहा है पार्टनर को? गुडविल दे रहा है, राइट. सो गुडविल इज गोइंग आउट क्योंकि गुडविल एक असेट होती है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके,
अब यहाँ पर आप कहोगे कि असेट तो हमारे पास हमने परचेस ही नहीं की, तो आप ध्यान रखिए गुडविल हम कभी भी परचेस नहीं करते, वो हमेशा बिजनेस कैलकुलेट करता है, इट इज अ फिक्टिशियस असेट। तो इसलिए यहाँ पर परचेस की एंट्री हुए बगैर ही गुडविल की सेल की एंट्री हो सकती है। तो एक तरह से समझिए यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है उसने गुडविल परचेस किए तब जाकर के वो बिजनेस के प्रॉफिट्स में शेयर लेने के लिए एलिजिबल हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हमारा नरेशन आ जाएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नेक्स्ट इज, अब ये जो गुडविल पार्टनर लेकर के आया है, ये गुडविल जो है इसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है, क्योंकि वो किसके लिए लाया है ये गुडविल, वो लाया ही ओल्ड पार्टनर्स के लिए है। तो जब भी एडमिशन में कोई भी पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स। So let's distribute this goodwill in old partners goodwill account debit to old partners capital account in their sacrifice ratio। अभी ये बात आप ध्यान रखिए, सैक्रिफाइस रेशो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि न्यू पार्टनर जो आ रहा है उस वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हो, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, when partner brings his share of goodwill in cash and old partner withdraw it। ओके, ये तो बहुत ही आसान है। जो पार्टनर गुडविल लेकर के आया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश में गुडविल आई है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी कंपल्सरीली। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being goodwill distributed in old partners in sacrifice ratio। राइट, यहां तक का काम खत्म हो गया। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर गुडविल से गुडविल कैंसिल हो चुका है। राइट, तो अब कोई गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कैश आया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जो पार्टनर्स हैं अब वो इस गुडविल को अपने घर ले जाना चाहते हैं। भाई ट्रिप प्लान कर लिए है हम, हमको गुडविल में भाई एक पार्टनर को 20,000 रुपीज आ रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, 20,000 रुपए खर्च करके आएंगे। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर हालांकि पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है, लेकिन जब गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, सिंपली हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जितना भी अमाउंट उनको गुडविल के लिए आया था उस गुडविल अमाउंट से वो लोग इसको विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इट कमेंट बॉक्स। Case number 3, when new partner do not bring his share of goodwill in cash and old partners raise it। Okay, अब यहाँ क्या हो रहा है कि न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल नहीं लेकर के आ रहा, तो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल रेज करना है। तो देखिए हम गुडविल रेज करेंगे जब भी, तो उसके लिए गुडविल हमारी एसेट है, तो उसके लिए एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तब होता है जबकि कैपिटल इंक्रीज होती है। तो आप यहाँ पर देखिए गुडविल रेज होने से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो चुकी है। राइट, अब जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो क्या होगा, न्यू पार्टनर के आने पर अब इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में अगर नहीं कहा है तो राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में कहा है तो वी विल राइट ऑफ इट। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाउ ऑल मीन्स व्हाट, ऑल मीन्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को हमने इंक्लूड किया है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू, ये गुडविल रेज हुई थी 2 लोगों के बीच में, राइट ऑफ हुई है 3 लोगों के बीच में। तो इस तरह से जो न्यू पार्टनर आया है उसने अपने कैपिटल में से गुडविल का शेयर जो है ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया है।
कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर जर्नल एंट्रीज विद अमाउंट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इफ यू वांट कि मैं गुडविल के ऊपर अलग से विद क्वेश्चंस एक वीडियो बनाऊं, सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू। सो हियर वी हैव रिटन ऑफ गुडविल। ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हमारा लास्ट केस बनेगा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड पे इट प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स। अब आप इसमें एक ये प्राइवेटली वर्ड ध्यान रखेंगे, अगर प्राइवेटली लिखा हुआ आ रहा है तो आप जो गुडविल है उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। प्राइवेटली का मतलब है द कैश हैज नॉट कम इनटू द बिजनेस। उन लोगों ने बाहर बाहर में एडजस्टमेंट कर लिया है, कैश को बिजनेस में नहीं लाया है। तो इन दिस केस देयर विल बी नो एंट्री फॉर गुडविल। ओके, so this way we completed calculation of new ratio, sacrifice ratio and treatment of goodwill. Now let's discuss about treatment of accumulated profits or losses. Okay. So what is accumulated profit? Accumulated profit means all profits of the firm. ईयर बाय ईयर जो प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है और पार्टनर्स ने जो विड्रॉ नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज accumulated profits. It is shown in the liability sides of balance sheet and it is shown in the name of profit and loss account या फिर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो डिस्कस जरूर करेंगे। This profit is distributed among the old partners in their old ratio. So journal entry for accumulated reserves is accumulated reserves account debit to old partners capital account. जैसे कि अगर जनरल रिजर्व है तो उसके लिए एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ पर रिजर्व्स के लिए किया है या फिर यूं कहूँ कि प्रॉफिट्स के लिए किया है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट लॉसेस के लिए होगा। जैसे कि पी एंड एल का अगर डेबिट बैलेंस है हमारे बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हम लोग उसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखिए यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्यों ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए? बिकॉज वेन एवर अ न्यू पार्टनर्स कम्स इन, ओल्ड पार्टनर सेज कि भाई अब वो आने वाला है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें न्यू पार्टनर का भी शेयर होगा। तो हमारे जो पुराने प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखे हुए हैं, तो हम उनको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि जब न्यू पार्टनर आएगा तो उस केस में जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नए प्रॉफिट का होगा। अब तक जो प्रॉफिट अर्न किया है वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारी मेहनत है, तो उसका फायदा हम उठाएंगे। आगे जो प्रॉफिट्स आएंगे वो न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसलिए न्यू पार्टनर के आने से पहले ही हम लोग ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Hello students, welcome to my channel again. I'm Chinmay Jain and today we are going to start a new topic, that is admission of partner. Admission of partner, today we are going to discuss some basics of admission of partner, and of course it will start with reconstitution of partnership, the meaning of reconstitution. What is the meaning of reconstitution? अब पार्टनर्स ये कहेंगे कि हमने जो प्रॉफिट्स अर्न किए उसमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया है, राइट? तो अब असेट जो है उसको फिर से 1 लाख पर लेकर आओ, जो 60,000 का असेट था उसको फिर से 1 लाख पर लेकर आओ, राइट? नहीं तो हमारा नुकसान होगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई फर्नीचर है उसका कॉस्ट बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है 20,000 और एक्चुअली वो है 10,000 की, तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो ये कहेगा कि भाई मैं असेट की वैल्यू ज्यादा क्यों पे करूं? अगर वो 10,000 की एसेट है तो मैं उसको 20,000 के हिसाब से क्यों पे करूं उसके लिए? तो आप एक काम करो, उसकी वैल्यू अभी कम करो मेरे आने से पहले, राइट? सो दोनों में डिस्प्यूट ना हो इसलिए क्या किया जाता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो what is revaluation of assets and liabilities? The value of assets and liabilities are revalued so that the profit or loss from increase and decrease of asset or liability can be shared by old partners.
अभी इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, तो क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसी एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? ऑलरेडी एसेट इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस, उसका अमाउंट अगर इंक्रीज करना है तो उसे और डेबिट कर दिया जाता है, राइट? नाउ इफ अ वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज डिक्रीज्ड, हमने असेट इंक्रीज की बात की, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिवैल्यूएशन। अभी असेट की वैल्यू अगर कम हुई है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, सो जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एंड इफ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज इंक्रीज, तो लाइबिलिटी के ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे और क्रेडिट कर देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। So this way we have learned the journal entries of revaluation of assets and liabilities. जब हम अकाउंट इसका बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, revaluation account which is also called as profit and loss adjustment account and it is a nominal account। तो भाई अब ये जो nominal account है, इसमें डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? लॉसेस लिखते हैं, एंड क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स लिखते हैं। तो देखिए, लॉस कब होगा? वेन एवर देर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, दैट इज डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और देर इज ए इंक्रीज इन लाइबिलिटी, आपको किसी को पहले 10,000 रुपीज देने थे, अब 15,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, दैट विल बी योर इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो नुकसान हो गया हमारे लिए। एसेट का अप्रिसिएशन अगर होगा तो दैट विल बी अ प्रॉफिट, एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी देन आल्सो देयर विल बी अ प्रॉफिट। सो दिस वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट बनाने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं और इसका जो भी बैलेंस आता है उसे प्रॉफिट एंड उसे ये अकाउंट क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट revaluation of assets and liabilities. Now last thing which is remaining is adjustment of capital. Let's move towards adjustment of capital. बहुत ही आसान है। Old partners capital is adjusted as per new partners capital. So how capital is adjusted? Old partners capital is adjusted as per new partners capital, right? कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया है तो ये देखते हैं कि वो कितने शेयर के लिए कितना कैपिटल लेकर आया है, और अकॉर्डिंगली जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना कैपिटल एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर उनके पास कोई अगर उनके पास जो कैपिटल ऑलरेडी है वो अगर ज्यादा है तो वो जो अमाउंट ज्यादा है वो विड्रॉ कर लेंगे, और अगर किसी पार्टनर के पास जितना अमाउंट होना चाहिए उससे कम है तो वो अमाउंट ऐड करेगा। ओके, सो let's take an example to understand it better. Aman and Raman are partners. They admitted Sharman with capital of rupees 60,000 for one-third share. Adjust the capital of old partners as per new partner if the new profit sharing ratio is 3:2:1। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। 60,000 हमारे पास अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है। देन वो कितने शेयर के लिए ला रहा है? 1/3 शेयर के लिए ला रहा है। पर हमारे लिए अभी ये इंफॉर्मेशन इस काम के लिए यूजफुल नहीं रहेगी, हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो लेट्स सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना है? 3:2:1। सो इट विल बी रिटन लाइक दिस, 3:2:1। ये सिंपलेस्ट मेथड है टू सॉल्व द कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके अलावा भी दूसरी मेथड होती है बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, डिफिकल्ट पड़ती है, तो हम लोग इसी से सॉल्व करने वाले हैं। Capital of new partner, how much it is? 60,000 is the capital, right? Now
what we have to do, we have to divide 60,000 by 1. 1 मतलब कि जो शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर है, यहाँ पर अगर 1 की जगह 4 होता तो हम 4 से डिवाइड करते, 3 होता तो 3 से डिवाइड करते. 60,000 डिवाइडेड बाय 1, तो अमाउंट आ गया हमारा 60,000. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आया है 60,000, अब इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे अमन का भी शेयर और रमन का भी शेयर. सी 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 2, तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल कितनी आई है? सी अमन 1,80,000, रमन 1,20,000 एंड शर्मन 60,000. सेम, न्यू पार्टनर की कैपिटल हमेशा सेम रहेगी, ओल्ड पार्टनर की जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी. ओके, अब हम ये जो अमाउंट है ये क्लोजिंग बैलेंस की तरह यूज करने वाले हैं. ओके, जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. इसके अलावा भी ये एक्चुअली एक जिस्ट है, लाइक रिवीजन के लिए अगर आपको जरूरत है तो. इन डिटेल अगर हर टॉपिक को समझना है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगी. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है. समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो हो आप लोगों को पता लगे. और यस, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.